लगातार सीमारे अस्त्र विरति उल्लंघन करिबारे लागिछि पाकिस्तान। गतकाली रातिरु आज सकाळ मध्यरे जम्मू कश्मीर सीमार 5टी सेक्टर रे पाक सेना पक्षरु गुलीबाड़ करा जायछि। कुपवाड़ा, पूंछ, नौशेरा, बारमूला एवं अखनूर निकट एलओसी रे पाक सेना गुलीबाड़ करिछि। भारतीय जवान मध्य गुलीबाड़र जवाब गुलीबाड़रे ही देउछन्ते। भारतीय आर्मी एने सूचना देछि। पहलगाम आक्रमण को नहीं भारतर कार्यानुष्ठान पर आरंभ होइछि पाकिस्तान अस्त्र विरति उल्लंघन। भारतर चेतावनी सत्वे बेखातिर पाक सेना हेले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देवा को भारतीय जवान भी प्रस्तुत। सर, जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अभी इंडिया ने चलाया है, इसका असर कुछ पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर? इसको कैसे आप देखते हैं? डिप्लोमेटिक जो हमने स्ट्रैटेजी अप्लाई है, इसका बहुत असर पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कम्प्लीटली आइसोलेटेड हो गया है। हमने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया है, IMF को अप्रोच किया है, FATF को अप्रोच किया है। FATF वापस इसको ग्रे लिस्ट में डाल देगा। हमारे कहने के बाद में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही सैंक्शन लगा दिया है। दे वर अबाउट टू गिव देम $2 billion लोन, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग देम $2 billion, they are now giving them only $108 million. Similarly, we have approached America and the European Union to apply all types of sanctions on China, on Pakistan. In addition, Donald Trump had promised a grant of $300 million to Pakistan for supplying spare parts for the F-16 aircraft. That also is likely to be stopped. Then we are very fortunate at this point of time that 5 major bureaucrats and the Vice President of America are in India's favor. J.D. Vance is pro-India, Mike Waltz is pro-India, Mike Rubio is pro-India, Kash Patel is pro-India, Tulsi Gabbard is pro-India. Under these circumstances, Pakistan is going to be in a very difficult condition. Secondly, because of the political initiative that we've taken and diplomatic initiative, today the entire world is standing with us. Virtually there is nobody standing with Pakistan. Not out of 65 Muslim countries and Arab countries, not one is supporting Pakistan. सर, अभी आपको कैसे देखते हैं ये जो टर्की ने अभी उनको TV-12 दिया है, ड्रोन जिसको माना जाता है सबसे खतरनाक ड्रोन है, और चाइना सपोर्ट किया है, फाइटर प्लेन भी भेज दिया इनको। अगर इसको कैसे आप देखते हैं? ये एक स्ट्रैटेजी है चाइना और टर्की का वेपन सेल करना? देखो, एक किस्म का टर्की का स्ट्रैटेजी नहीं है। टर्की जो है इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ही वांट्स टू बी द बिगेस्ट नेशन इन इस्लामिक नेशन ahead of Saudi Arabia. But presently, because of the monetary clout of Saudi Arabia is the biggest nation. Turkey wants to some or the other take some nuclear weapons from Pakistan, and if they get, then they will become the second Muslim country to have nuclear weapons. And Turkey has always been pro-Pakistan. Even FATF, Pakistan got out of FATF because of the support of Malaysia and Turkey. There has been no change in Turkey, Erdogan's support for Pakistan for the last 10 to 12 years. As far as China is concerned, China has invested very heavily in Pakistan in terms of CPEC, $65 billion, and they say that their relationship is higher than the Himalayas and deeper than the oceans. They have no option but to be supportive. But this support will virtually not aid Pakistan at all, because at this point of time, Pakistan Army's morale and motivation is down in the boots. There are large-scale resignations. Thousands of soldiers have resigned. More than 1,000 officers have put in resignation. And under these circumstances, if you recall 1965 war, पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से बेहतर हवाई जहाज थे, बेहतर टैंक्स थे, बेहतर आर्टिलरी थी। जीत फिर भी हिंदुस्तान की हुई, क्योंकि हिंदुस्तान का मैन बिहाइंड द मशीन जो था, ही हैड बेटर मोरल, बेटर मोटिवेशन, बेटर ट्रेनिंग, बेटर लेड, और सारा देश उसके पीछे खड़ा था। आज भी सारा देश जो है हिंदुस्तान की फौज के पीछे, सरकार के पीछे खड़ा है। तो आपने 1970 वार, यू हैव फॉट 1971 वार, सो अभी कैसे लगता है अगर वार इंडिया पाकिस्तान के बीच होगा, हाउ कैपेबिलिटीज इंडियन आर्मी? मैंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 1965, 71, 90 एंड 1999। लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 48, 65, 71, 99।
हर लड़ाई पाकिस्तान हारा है। जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ललकारा या चैलेंज किया, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। पाकिस्तान को साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि कन्वेंशनली वो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, और इसी वजह से उसने प्रॉक्सी वॉर और इंसर्जेंसी टेररिज्म को बनाया एज अ स्टेट पॉलिसी हिंदुस्तान को हजार कट लगाने के लिए। उनके जो चीफ थे, आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आतंकवादी हैं, हाफिज सईद है, सलाहुद्दीन है, लखवी है, मसूद अजहर है, दाऊद इब्राहिम है, ये तो उनके नेशनल हीरोज़ हैं, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। बोले ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, नेशनल हीरोज़ है, और हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। अभी आपको लगता है इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज अबाउट न्यूक्लियर वॉर? मेरे मुताबिक न्यूक्लियर वॉर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस। और पाकिस्तान को साफ तौर पर मालूम है कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ उसने गलती से भी एक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया तो विद इन 8 to 10 मिनट्स पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पूरा खत्म हो जाएगा। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय भी प्रेसिडेंट क्लिंटन ने बोला था कि F-16 जो है सरगोदा से मूव कर रहे हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप आइए नवाज शरीफ से बातचीत कीजिए, कोई समझौता कीजिए। ही वांटेड अस टू कॉम्प्रोमाइज एंड गिव अवे सम लैंड। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा आप मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन नवाज शरीफ को बता दीजिए, पाकिस्तान की आर्मी को बता दीजिए, अगर उन्होंने गलती से भी हमारे खिलाफ न्यूक्लियर हमला किया तो हम 8 से 10 मिनट के अंदर 500 शहर पाकिस्तान के छोटे बड़े completely wipe out कर देंगे in 8 to 10 minutes, and Pakistan knows that. Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to ₹10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.